کے والے بھائی نے بات کی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک مدنی گلدستہ دیکھا تھا، وہ منظر بھولتا نہیں ہے، یورپ کے کسی ملک کا تھا وہ مدنی گلدستہ، کسی جگہ پر جائے نماز یا مسجد دعوت اسلامی نے بنائی تھی اور ایک شخص نے وہاں تاثرات دیے تھے اور وہ واقعی آنسوں سے رو رہا تھا جذبات کی وجہ سے، اور اس نے بتایا تھا کہ میں پتہ نہیں 400-450 کلومیٹر دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد میں نے مسجد کی زیارت کی ہے اور اذان کی آواز سنی ہے۔ یعنی سالوں گزر جاتے ہیں، بعض اوقات ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں۔ پھر ایک یہ نماز کا مسئلہ، پھر جن علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں تو وہاں پر حلال چیزیں مل جاتی ہیں تھوڑی کوشش کر کے نا، اور اگر جب سفر پر ہیں آپ اور ملک جو ہے وہ غیر مسلموں کا، اب آپ وہاں پر کیا کھائیں گے، کیا وہاں پر آپ لیں گے، یہ ایک اتنا بڑا پرابلم ہے۔ کیا کھاؤں نہ کھاؤں، پھر بھی وطن سے یار محبت نہیں کرتے۔ یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ اپنے وطن میں محنت کر لو، باہر جانے کے خواب چھوڑ دیں، یہ میں آپ کو سینکڑوں داستانیں بتا سکتا ہوں۔ رو رہے ہیں باہر جا کر، قرضے لے کر باہر جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے باہر جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں۔ وہاں نوٹ یہاں درختوں پر ڈالر نہیں لگے ہوئے، اب وہاں نوکریاں اتنی آسان نہیں ہیں، وہاں بھی بے روزگاریاں ہیں اور ہمارے وطن کے لوگ وہاں روتے ہیں۔ اچھا پھر جتنی محنت آپ وہاں جا کر کرتے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، صبح 6 بجے سے جناب کام پہ جا رہے ہیں، رات کو واپس آ رہے ہیں، کھانا بھی خود ہی پکا رہے ہیں، اس کے بعد پھر صبح اٹھ رہے ہیں، بیماری میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ارے یہاں تو ہم اٹھتے نہیں ہیں صبح، کام یہاں کرتے نہیں ہیں۔ اگر اتنی محنت یہاں کر لیں، یاد رکھیں وطن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آدھی روٹی، اور وطن سے دور، گھر والوں سے دور، اپنے کلچر سے دور 2 روٹیاں، وہ اچھی نہیں، یہ آدھی روٹی ٹھیک ہے۔ ہمارا مذہب بھی سلامت ہے، ہمارے لوگ بھی ہمارے پاس ہیں، ہمارے مسجدیں بھی ہیں۔ یہ جو بات آپ نے کی نا کہ ہمارے ایک بار پہلے بھی میں نے واقعہ سنایا، ہمارے بہت اچھے قریبی اسلامی بھائی ہیں، ان کے گھر پہ ان کے ماموں آئے امریکہ سے۔ وہ آئے تو اذان کا وقت ہوا، نماز پڑھ کے آئے ظہر کی، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتے ہیں عصر کا وقت کب ہوگا، تو بولا اتنے بجے ہوگا۔ تو آدھا گھنٹہ پہلے وضو کرنا شروع کر دیا۔ بولا ماموں ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے عصر پڑھ کے عصر چلے، واپس آئے تو مغرب کے لیے تیاری شروع۔ بولا ہم تو آخر وقت میں جاتے ہیں اب اتنا پہلے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اس اسلامی بھائی نے مجھے بتایا، بولا بیٹا تم کیا جانو اذان کیا ہے، تم کیا جانو مسجد کیا ہے، تم خوش نصیب ہو تمہارے گھر میں روزانہ اذان کی آواز آتی ہے، ہم تو میلوں سفر کرتے ہیں جب جا کے ہمیں مسجد ملتی ہے۔ لیکن آج ان لوگوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بڑی جس کو کہتے ہیں نا، میں آج کچھ سیڈ گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آج ہم نے بات کی تھی کہ ہم نیگیٹیوٹی پہ بات نہیں کریں گے، لیکن چلیں ہمیں سکھایا یہ گیا مبلغ تو کچھ نہ کچھ تو بولے گا نا یار۔ ہمارے ایک جو بڑی جو ہے نا افسوسناک بات ہے، نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کے قریب گھر جو ہے وہ سستا ملتا ہے، لوگ مسجد کے قریب گھر نہیں لیتے، بالکل جو جڑا ہوا گھر ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے، لوگ دیکھتے ہیں ہاسپٹل ہے کہ نہیں، گھر کے قریب بس اسٹیشن ہے کہ نہیں، مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے مسجد قریب ہے کہ نہیں، اذان کی آواز میرے گھر میں آئے گی کہ نہیں۔ یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے، میسج ہے آپ سب کے لیے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، مسجدوں سے محبت بھی رکھنی ہے۔ اب ہمیں 8-10 کال ایک ساتھ سنا دے پہلے، چلے آپ نوٹ کر لیں، اگر کچھ باتیں ہوں گی تو ہم اس پر انشاءاللہ۔ جی میرا نام محمد اکرم اچاری ہے، نور کالونی ہے لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی مکالمہ جو سلسلہ آج ہے وہ پاک وطن کے پیارے رنگ، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے حضور۔ اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے وطن کے جھنڈے کا رنگ جو ہے نا وہ زیادہ جو سبز ہے، تو مدینے کی طرف وہ نسبت ہے الحمدللہ، تو بہت پیارا جھنڈا ہے۔ اور ہمارے ملک کے خطے کے رنگ، پوری دھرتی کے رنگ بہت ہی پیارے ہیں، جن کے اندر بے شمار مزارات اولیاء ہیں۔ تو سب آج کے اس پرمسرت موقع پر جو لوگ پاک وطن کا حلیہ بگاڑتے ہیں، چوری ڈاکوں سے، پتہ خوری سے، سب ان کو کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ وہ ہمارے پاک وطن کی اس پاک مٹی پہ اپنے ناپاک عزائم کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں، توبہ کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال دے دیجیے۔ میں سجاد حیدر اتاری پنڈی تو بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب اور دیگر سارے لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور اسپیشل پاکستان کا پرچم ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اور سارا سیٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں، غبارے، اور ماشاءاللہ سارے لوگ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اور
ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। अब मैं ये बताऊं कि जो परचम की बात हुई ना, अगर गौर करें तो दावत इस्लामी वाले भी तो पाकिस्तानी परचम वाले हैं, सर पर सब्ज़ इमामा है, हमारे सफ़ेद लिबास है, तो हम के पाकिस्तानी है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भाई, खैर ये निस्बत गुंबद खज़रा की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ हिलाली परचम भी उम्मीद है इसी निस्बत से गुंबद खज़रा की निस्बत ही से बनाया गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कौन हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साईं साबिर रज़ा अत्तारी तलाश शहर में ॻाल्हायां पियो। हाजी अब्दुल हबीब भाई, वॾी ॻाल्हि आहे जेको अॼु असांजे सिंधी इस्लामी भाउ, उनखां पंजाबी, पश्तो सभई सभिनि ॿोली वारा इस्लामी भाउ तव्हां माशाल्लाह गॾु कया आहिनि। इहा अमीर अहले सुन्नत जो फैज़ान आहे माशाल्लाह, असांजे पाकिस्तान जी मोहबत आहे। ऐं अमीर अहले सुन्नत अमन बरकातुहू आलिया सिंधी हुजे, पंजाबी हुजे, पठान हुजे, सभिनि खे गॾु करे असांखां पाड़े में 4 माण्हू सेट नथा थियनि, ऐं अमीर अहले सुन्नत अमन बरकातुहू आलिया अल्हम्दुलिल्लाह हर ॿोली वारे खे सेट करे ॾियो। सभिनि खे वॾी महिरबानी तव्हांजी। अल्लाह ताला तव्हांखे मज़ीद तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं नियतों के साथ हम सिलसिला कर रहे थे कि तमाम बोली बोलने वालों के लिए कुछ जो है वो खुशियाँ हों, वो उनकी दिल जोई हो, और मज़ीद वो मदनी चैनल देखें। मुझे बहुत सारे मैसेज असद भाई आ रहे हैं कि बापा की बोली की भी कुछ बात की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक भी मेमन आऊँ भी मेमणियाँ मेमन भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक पाकिस्तान के ज़माने से पाकिस्तान के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो मिजी मालूमात है, जो मुतालो थियो है, इनके हिसाब से ख़बर पई थी कि एट द स्टार्ट टाइम में भी मेमण जो है मूंखे बताने में चाहिए कि कोई मेमण लेज कॉल है, तो हलो पहला पा कॉल गिनी होता है, बचे पाकी मेमणी ज़बान में गाल कर होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अब्दुर्रहमान अत्तारी गांची बाबुल मदीना कराची ना इलाका गार्डन से बात करी रह्यो छूं। मदनी चैनल बहुत प्यारो सिलसिलो करे छे, मदनी मुकालमा, मदनी मुज़ाकरा, अल्लाह बदा सिलसिला करे छे। अल्लाह ताला मदनी चैनल ने हमारा बापा जाने दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता करे, खूब बरकत अता करे, आस दिन आसत से बचावे, जालिमीन जुल्म से बचावे ने। बस ई जेटलू कहूं तो मने कि आज 14 अगस्त ना दिवस है, जो पाकिस्तानी हमने असल खुशी मिली है, तो बस हमें एन शरीयत ना मुताबिक पोतानो मतलब यानी आ खुशी ने बनावे, ना कि कोई मतलब यानी बीजा चैनल ना जाए, कोई गाना, कोई म्यूजिक की कहीं ना करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेमनी से भी हट के थोड़ी ज़बान है, ये हमारी गांची ज़बान गालिबन है, और बहुत सारी बोलियां हैं पाकिस्तान में, बड़ा मिक्स कल्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मैं आवर्स करी रही वो मेमन के हवाले से कि तहरीक पाकिस्तान में भी फाइनेंशियली माली तौर पर मेमण उन ज़माने से ताउन करी, यानी अज भी बहु वही आबादी मेमणे जी जो है वो बिज़नेस कम्यूनिटी के अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करी रही है, पाकिस्तान जे बिज़नेस के इम्प्रूव करी रही है। लेकिन हिकिड़ी ॿी ख़ूबसूरत ॻाल्हि जो मेमणे से पाके मिलियो अल्हम्दुलिल्लाह, पंहिंजा अमीर अहले सुन्नत भी मेमण ही नहीं, मेमण एडी शख्सियत पाके अल्लाह अता करी कि अज बहुत सारी ॻाल्हि करी है थोड़ी बार पहला आकड़ा इस्लामी भाई कि बदे बोलियाँ वारे के हमसे एक बंदा नहीं संभलता। अमीर अहले सुन्नत ने मुख्तलिफ बोली बोलन वारा, मुख्तलिफ ज़बानों बोलन वारा, मुख्तलिफ रंगो नस्ल वारा, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक वारा, यानी क्यों मुल्क है किड़ा वो ना हिंद हो, क्या वो बड़ा प्यारा शेर है ना, करती तुझे सलाम है यूरोप, क्या है वो शेर पढ़े, अमेरिका यूरोप, अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीं, अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीं, अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीं, करती तुझे सलाम है, करती तुझे सलाम है, इलियास क़ादरी मेरे पीर का ये नाम है, इलियास क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजा अमीर अहले सुन्नत भी मेमण ही, पंहिंजा निगरान शूरा भी मेमण ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पाकिस्तानी भी मेमण भी, तो अल्लाह जी मेहरबानी से कम सॼी दुनिया में थी रहियो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेतिरा मुंहिंजा मेमण इस्लामी भाई सुनी रहिया आहिनि, मदनी चैनल जा नाज़रीन सुनी रहिया आहिनि, ऐं बि अचो, दावत इस्लामी वतन जी मोहब्बत भी ॾिए थी, दावत इस्लामी दीन जी मोहब्बत भी ॾिए थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम जी मोहब्बत जा जाम भरी भरी ने पाके पीराई थी। तो इन तहरीक से दूर ना रहियो, ये पंहिंजा उहो जो फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी उज मेमण आहिनि, तो कुरल न पा बदे मिली ने दावत इस्लामी जे साथ ॾियूं ने मिली जुली ने इन जो कमु करूं। ने माज़रत भी करा तो मुझी इतनी फ्लुएंट मेमणी
मेमनी ना है, क्योंकि बोलने का मौका नहीं मिलता। जैसे आपको भी सराइकी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कोई आज मेमनी में बयान करें, तो अब वो बोलते नहीं है ना, तो खास तौर पे घर में बोलते हैं, लेकिन बयान में और इसमें तो भाई वजह वडा बुढ़ा जो भी वजह बुजुर्गिन नाराज ना थी जा, क्योंकि बड़े हमारे जो बुजुर्ग है ना इस हवाले से बड़े जिसको कहते हैं स्ट्रिक्ट है कि मेमनी में वो जो है ना वो अल्ट्रेशन नहीं चलेगी, जो उसके खुद जो हाँ उसका एक्सेंट। और तो हम जो नए लोग हैं, नई जनरेशन, वो मेमनी की पुराने अल्फाज याद ही नहीं है। बल्कि मैं आपको सच बताऊं, ये आपके साथ भी होता होगा, जो पुराने बुजुर्ग हमारी जबान बोलते वो हमें समझ नहीं आ रही होती, तो घना एड़ा लफ्ज़ जो अजबी ऐसा के जो है वो मुश्किल थी नहीं समझ रहे। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारी कोशिश की जाए कि बदले दिल में खुशी दाखिल करूँ। लुक एट द दावत इस्लामी के कल्चरल खूबसूरती को देखें कि इस वक्त सारे ही अलग अलग बोली बोलने वाले हैं। मेरे साथ अभी हमने बलोची मुबल्लिग की बात की, नहीं थे वो आए नहीं या किसी वजह से नहीं पहुंच सके, थोड़ी देर में हमने एक और बलोची तलाश कर लिया। तो ये हमारा मदनी मरकज, देर नहीं लगती, मैंने इशारा किया यार कोई बलोची इस्लामी भाई को ले आए। ये है दावत इस्लामी, हर रंग का इस्लामी भाई, हर बोली बोलने वाला हमारे मरकज में। सिलसिले की तैयारी हो रही थी तो आपने कहा, जब आइडिया शेयर हो रहा था तो आपने कहा कि मुख्तलिफ ज़ुबानों वाले लेने, तो ऐसी तफन्नुन के लिए मैंने कहा अच्छा फिर सिंधी जो है वो अपने वो वेस्ट कोट पहन के आएगा, जिरक लेकर आएगा, पठान अपने लिबास में आएगा। तो हमने कहा नहीं नहीं, यही तो हमें दिखाना है कि ये सारे मिलकर रंग एक है, मदनी रंग, और अल्हम्दुलिल्लाह वो है। और ऐसा है, यकीन करें, हम तो इस माहौल में रहते हैं ना, प्रैक्टिकल बात है, वाकई सालों गुजर जाते हैं एक ही कमरे में रहते हुए, एक ही जगह पर काम करते हुए, बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि इसके मादरी ज़ुबान ये कि पढ़ी नहीं है, यानी कल्चर ही नहीं है ये पूछने का कि भाई ये कौन है, मैं कौन हूँ। चल रहे होते हैं। और जामिया में हमने वक्त गुजारा 8 साल, तो चौथे 5वें साल में जाकर बाज़ औक़ात इंकिशाफ होता था, अच्छा इसके मादरी ज़ुबान ये हो सकता है। आज हमारे नाज़रीन को भी बड़े इंकिशाफात हुए हों आपकी ज़बान के बारे में, हमारे भाइयों के हो सकता है कई इस्लामी भाइयों के बारे में पता चला होगा। ये भी पता चला होगा पख्तून नेम, ठीक है भाई, हाँ ज़ पख्तून नेम, ये भी पता चल गया होगा। बलोची में हम इनसे इंशाल्लाह नारा सुन लेते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या बलोची में किस तरह ये कहेंगे, और मदनी मकसद हमें बलोची में सुना दे, ताकि हमारे बलोची इस्लामी भाइयों की अपने बारे में बताएं। मेरा ख्याल है तालिब इल्म है माशाल्लाह, या कहाँ से तशरीफ़ लाएँ, ये भी इनसे भी सुन लेते हैं। तो चलें, बलोची भाई हमारे इंशाल्लाह सुनाएंगे हमें। 1-2 कॉल्स और दे दीजिए जनाब। मोहम्मद कामरान अत्तारी, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा अर्ज कवम यो वाकया इस्तासो खिदमत की पेश कवम चेरुस्तो वर्जो के यो बल मुल्क ता दतलो इत्तेफाक शो अल्तयु इस्लामी रोड सरा मुलाकात शो आगा हुए के जमा वाहिद साहिब देर ज्यादा बीमार हो और ऑपरेशन द पारा आगा बल मुल्क ना पाकिस्तान तम लेगल द ऑपरेशन द पारा नमा वर्ते वे चमु खवरदली ची नूर मुल्कुने के द मेडिकल सहूलियात देर ज्यादा दी तासो पाकिस्तान तो लेगल गावले अगर तो वेल चे दलता खर्चा इंतहाई ज्यादा मुंग द पाकिस्तान लो रातलो टिकट सरा हम चे ऑपरेशन अखराजात मुकुनो ब्या हम द दे जगह खर्चे न ढेर कम मुंग त प्रीवुजी दस यो बल ढेर तरक्की याफ्ता मुल्क में यो बल कस द अखल गाखुनो ऑपरेशन द पारा पाकिस्तान तरालो ब्या वापस लावड़ो आगा वही चे आने जाना खर्चा सरा माता कम अज कम 10 लाख रुपए ब्या बचत शवे भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मुल्क दस मुल्क राको चे पके सहूलियात ढेर ज्यादती अल्लाह दे जमुन मुल्क कायम व दायम लरी आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेशन और 10 लाख रुपए तो समझ आए हैं। वही आपकी बात अच्छा जो आपने फरमाया था ना कि मैं अपनी वालदा को लेकर जाने लगा था, तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये इलाज भी सस्ता है और मतलब सहूलियात बहुत अच्छा इलाज। वहाँ से मतलब मुझे खुद हैरत, मतलब जिस इस्लामी भाई का वाक़या बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं मुझे खुद हैरत हुई कि मतलब आपके वालिद साहब को क्या मतलब ऑपरेशन करना, हमने पाकिस्तान भेज दिया उसको, और यूरोप कंट्री का बता रहे हैं, मतलब वहाँ से उसको हम लोग यहाँ भेजते, आप लोग वहाँ पे ना, वहाँ सस्ता होता है। अच्छा ये तो क्यों किसी ने बताया था, मेरे अभी मेरे अजीज हैं वो अमेरिका से आए थे और वो पूरा इलाज करा कर गए, वो पता नहीं मुझे कितना लाखों का फायदा हुआ है। बिल्कुल ऐसा, टिकट भी निकल आती है, घर वालों से भी मिल लेते हैं, इलाज भी हो जाता है। पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है भाई, कदर करें इसकी, इस नेमत की कदर करें। जी हमारे बलोची इस्लामी भाई कुछ आज नारा लगा दो यार, पाकिस्तान का मतलब क्या, बलोची ज़बान में हम आपका साथ देते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ बलोची ज़बान में कुछ कहेंगे आज आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मन अस्तवत्शा बलूचिस्तान खारान तालुकादारी। और किस लिए आए हैं मरकज़ में आप? इधर मन इमामत कोर्स करने का। हाँ माशाल्लाह, इमामत कोर्स कर रहे हैं। कितने दिन का कोर्स है ये? 4 महीने कोर्स है। हाँ तो सही मामले नहीं, आप पश्तो में बात करें ना। अच्छा बलोची में माफ कीजिए। जी बलोची का पाऊँ। अच्छा तो सही महीने गोस्त देगा, 1 महीने पश कब था। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चक्कर अल्लाह लख लख एहसान है कि मम ये चक्कर
14 अगस्त महीने में फैज़ान मदीना का क्या बात, इंतहाई बात खुशी मुसरत रही। खारान से आए हैं जी जी। अच्छा, ये कितना दूर है बाबुल मदीना कराची से? यहाँ से तो एक मरतबा में क्वेटा जाना पड़ता है, फिर क्वेटा से मज़ीद 5-6 घंटे का सफर होता है। 5-6 पैदल जाना पड़ता है? नहीं 5-6 घंटे जाना पड़ता है मज़ीद, मतलब अच्छा, यानी बस में जाकर क्वेटा से 5-6 घंटे। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि ये क्यों आपने ये कोर्स किया? लोग तो डिप्लोमा करते हैं, स्कूलों में दाखिला लेते हैं, बड़ी दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, आप खारान से यहाँ आए और इमामत कोर्स करने, क्या इसके पीछे जहन क्या है? बलोची में जवाब देंगे आप। अच्छा, अव्वल सर तो मन वैसे वो तो कॉलेज में दाखिला मस्त वो वान तो अलबत्ते कि मैं दा तुम ना खबर कब ते अहमियत के पर जरूर मैं दर्शन का है हमारे सन जरूरत सिक्खगी तो प्रे बाबा तमन एक कोर्स सारा ज्वाइन करता हूँ और इसके खातिर मजीद कोशिश मेहनत करता हूँ कि आखिरत में ज़रूरी है ये एहसास के हमारा दा इस्लामी अदा ये बापा एहसास के हमारा दा कि अव्वल सर मचा गाफिल भी था मालूम ना भी था शर कारण ये बात फमाया मदारी क्या मत अल्लाह व रसूल दे हमारा पेश बेगी और जवाब देगी प्रे बाबा था ये क्या बात है। देखें नौजवानों को किस रास्ते पर लगा दिया अमीर अहले सुन्नत ने। आखिरत की फ़िक्र, दीन मतीन की खिदमत, इल्म दीन सीखना, इमाम बन के लोगों को नमाज पढ़, इस नौजवानी के आलम में आप देखें ये और मुख्तलिफ बोलियाँ हैं इनकी, लेकिन ये फ़िज़ान मदीना आ रहे हैं, इल्म दीन सीख रहे हैं। ये वतन हमें मिला है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बात की थी हमारे एक इस्लामी भाई ने, कॉल की थी कि हम शुक्र किस तरह अदा करें, हमारा वतन से मोहब्बत का अंदाज़ क्या होना चाहिए। आज का नौजवान किन मामलात में फंस गया है, इतनी बड़ी नेमत और उसका ये अंदाज़ से शुक्र मनाया जाए। रिवायतों में आता है कि अल्लाह का शुक्र मनाने का एक तरीका ये भी है कि प्रैक्टिकल शुक्र ये है कि उसकी नाफरमानी ना की जाए। और ये बिल्कुल 2 और 2 4 वाली बात है, लॉजिकली भी समझ आने वाली बात है। आपको दुनिया में कोई बंदा कोई तोहफ़ा दे, आप चाहते हैं वो नाराज़ ना हो, जितना अच्छा तोहफ़ा दे, जितनी अच्छी आपकी वो खैर खाही करे, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि वो हमसे नाराज़ ना हो, क्योंकि यार इसने बड़ी फ़िक्र की, हमारी बड़ी मदद की, मुसीबत में काम आया, मुझे बड़ा महंगा तोहफ़ा दिया। जिस रब ने हमें ईमान दिया, जिस रब ने हमें आज़ा सलामत दिए, नबी पाक का उम्मती बनाया और फिर इतना प्यारा वतन पाकिस्तान दिया, फिर भी उस रब की नाफरमानी की जाए, बल्कि इसी वतन के यौम आज़ादी वाले दिन रब को नाराज़ करने वाले काम किए जाएँ, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, ये नेमत का शुक्र नहीं है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, जब किसी नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जाता तो उसी नेमत को बंदों के लिए अजाब बना दिया जाता है। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहे तो हमारे मुल्क में अमन नहीं है, हमारे मुल्क में बेचैनी है, हमारे मुल्क में गुर्बत है, हमारे मुल्क में लोग परेशान हैं, इज़्ज़तों और जानों की हिफाजत के लिए परेशान हैं। आज टेंशन भरी ज़िंदगी है, आज वसाइल होते हुए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आज वसाइल होते हुए हम जनाब बहुत सारे मुल्कों से पीछे रह गए तरक्की में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रब की नाफरमानी में मसरूफ़ हो गए हैं, हम इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहे, हम कदर नहीं कर रहे। हम वतन से बाहर जाते हैं तो वहाँ वालों के वतन में जाकर सफाई का ख्याल भी रखते हैं, वही सफाई का ख्याल रखने वाले जब अपने वतन में वापस आते हैं तो अपने वतन को गंदा कर रहे होते हैं। हम बाहर जाते हैं, सिग्नल पर जाकर खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल रखते हैं, वहाँ रिश्वत के बारे में सोचते भी नहीं हैं, वहाँ मिलावट का तसव्वुर भी नहीं लाते, मगर जब अपने वतन में आते हैं तो अब जनाब सारे जराइम के दरवाजे हम खोल देते हैं। ये वतन जैसी नेमत के साथ हम क्या कर रहे हैं? खुदारा अल्लाह का एहसान है ये प्यारा पाकिस्तान, रब की बहुत बड़ी नेमत है ये प्यारा पाकिस्तान। अल्लाह का एहसान है ये प्यारा पाकिस्तान, वलियों का फैज़ान है ये प्यारा पाकिस्तान, मेरे दादा का पाकिस्तान, मेरे बाबा का पाकिस्तान, मेरे दादा का पाकिस्तान, मेरे बाबा का पाकिस्तान। अल्लाह का एहसान है ये प्यारा पाकिस्तान, वलियों का फैज़ान है ये प्यारा पाकिस्तान, मेरे दादा का पाकिस्तान, मेरे पापा का पाकिस्तान। हम कुछ अहद करें, कुछ नीयत करें। कब तक हम इस वतन को नुकसान ही पहुंचाते रहेंगे? कब तक मैं अपनी सोचूंगा, अपने वतन की नहीं सोचूंगा, अपने हम वतनों की नहीं सोचूंगा? हम चाहे तो मिलकर यूनाइटेड होकर नेक बन के, अच्छे मुसलमान, अच्छे पाकिस्तानी बन के एक बार फिर अपने वतन का नाम रोशन कर सकते हैं। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नीयत करो। अल्लाह ने बहुत बहुत बड़ी नेमत दी है, इसकी कदर करनी है, इस वतन की हिफाजत भी हमने करनी है। हर मुल्क का अरमान होते हैं नौजवान, जी हाँ, हर मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं नौजवान, और पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान रखने वाला मुल्क है।
जी हाँ, छठी आबादी है। और जिसको कहें कि 16 साल से लेकर 25 से 30 साल की उम्र की जो एज है, इस एज के अफराद दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हैं। अब ये वो वक्त होता है जब कुछ कर दिखाना होता है, ये वो वक्त होता है जब अपने वतन की तकदीर बदलने का वक्त होता है, ये वो दिन होते हैं, ताकत होती है, शबाब होता है, कुव्वत होती है। मगर आज का मेरा नौजवान कहाँ जा रहा है? जैसे जो बात की थी हमारे मुबल्लिग ने, अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया, मगर हम इस टैलेंट को नेगेटिविटी पर इस्तेमाल करते हैं। आज दुनिया में अगर कहीं फॉर्जरी की बात होती है, फ्रॉड की बात होती है, तो उसमें से कहीं कोई पाकिस्तानी निकल आता है। जब मनशियात के काम की बात होती है, उसमें कोई पाकिस्तानी निकल आता है। जब दुनिया में कोई इमिग्रेशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी की बात होती है, उनको सबको चकमा देने वाला भी कोई ना कोई पाकिस्तानी होता है। क्योंकि दिमाग बहुत अच्छा है, टैलेंट मौजूद है, मगर उस टैलेंट का नेगेटिव इस्तेमाल करना है। आओ, आज वतन से मोहब्बत का तकाजा ही है, मैं और आप ये नीयत करें, अल्लाह ने नेमत दी है, इसकी कदर करें। हम अगर चाहें तो पहले नंबर पर, जी हाँ, हमारा वतन ये लीड कर सकता है दुनिया के ममालिक को, आगे बढ़ सकता है। हमारे वतन में अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। हम ठीक हो जाएं, वतन बहुत अच्छा है। हम अच्छे हो जाएं, वतन बहुत प्यारा है। आज नीयत ये करनी है कि हम अच्छे पाकिस्तानी बने। जब पाकिस्तान का मतलब ये बयान किया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे रहनुमा हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आज हमने इस कलमा पाक से के नाम पर बने हुए वतन को, जिसको यकीन करो, पढ़ें तो सही तहरीक पाकिस्तान। बल्कि चलो मैं आपको एक तासुरात दिखाता हूँ। हमारे एक बुजुर्ग के तासुरात मौजूद हैं जिन्होंने ये वतन बनते देखा, ये इसके बारे में तकलीफें जो आईं वो उन्होंने देखा। आज मैं और आप नौजवान हैं, हम तो बाद में पैदा हुए, हमें तो पता ही नहीं हमारा वतन बना कैसे। हम तो खुली आंख में सांस लिया, पाकिस्तान बैठे बिठाए घर में हमें मिल गया और हम जनाब उसकी नाकदरी कर रहे हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ हमारा वतन हमें मिला तो किस तरह मिला। उन बुजुर्ग के ज़रा तासुरात चलाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1947 की जो यौम आज़ादी था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस जंग के अंदर हमारे दो ताया जान उन्होंने शहादत पाई और हमारे दादा के भाई जो थे वो भी शहीद हुए। ये हमारे वालिदैन ने हमें बताया, तो मैंने ऐसा देखा कि पाकिस्तान के अंदर यौम आज़ादी किस अंदाज से मनाया जा रहा है। क्या यौम आज़ादी इस तरह मनाया जाता है, इसको यौम आज़ादी कहा जाता है कि अपनी मोटरसाइकिलों से सनसन निकाल कर खूब शोर वोर करके लोगों को परेशान किया जाए, बीमारों को सताया जाए, सड़कों गलियों मज़ारों को रश डाल कर लोगों को परेशान किया जाए। इसका नाम यौम आज़ादी नहीं। यौम आज़ादी की कदर है तो उन लोगों को जिनके शहीद हुए थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ जंगें भी देखी हैं। तो आज़ादी की अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत अता की है। हमें इसके इवज़ अल्लाह ताला का जितना भी हो सके शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला के हजूर गिर गिरा कर रो कर माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम इस काबिल कहाँ थे कि अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत की और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से हमें पाकिस्तान जैसा आज़ाद मुल्क अता किया। आज हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी इबादत आज़ादी के साथ खुलम खुला कर सकते हैं। मगर अफसोस कि यौम आज़ादी का मकसद ये नहीं था कि हम लोगों को परेशान करें। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो उस वक्त मुसलमानों को आम खुलम खुला इबादत करने की इजाज़त भी नहीं होती थी, कई मसाइल पैदा होते थे। तो हमें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और जिस अंदाज में अल्लाह उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हो सके, फरमा बरदारी में अपना यौम आज़ादी मनाएं। तो इसके लिए मेरे मोहतरम प्यारे इस्लाम भाई, बेहतरीन तरीका ये है, हमें शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए और जो हमसे गलतियाँ खताइयाँ होती हैं मुल्क पाकिस्तान में रहते उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्ता हो जाना चाहिए, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनना चाहिए। तो आइए हम सब नीयत कर लेते हैं। मैं अपने नौजवानों को भी ये दावत देता हूँ, इंशाअल्लाह जुमेरात जुमा हफ्ता 3 दिन हमारे मदनी काफ़िले सफ़र करेंगे। तो जो भी नौजवान सब मेरी आवाज़ को सुन रहे हों, उनसे अर्ज़ है कि वो भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब आ जाएँ और हाथों हाथ दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। अल्लाह तबारक तआला हमें सही मायनों में यौम आज़ादी मनाने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे रहबरो रहनुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाकई पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के साथ घर कुर्बान किए, जाने कुर्बान की, सब कुछ कुर्बान किया। और ये एक दो लोगों ने नहीं, हज़ारों लोग, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। यकीनन उसमें तहरीक पाकिस्तान के जो लीडरान थे, जो कायदीन थे, उनका भी बड़ा अहम रोल है। हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, शायर मशरिक ने, डॉक्टर इकबाल ने ये ख्वाब देखा और फिर जिस तरह इसकी हमें ताबीर मिली। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जहाँ इन कायदीन को एक नाम मिला, एक शोहरत मिली, यकीनन बहुत बड़ा उनका कलीदी रोल है। मगर इस क़याम पाकिस्तान के अमल में
شاید بہت سارے ناظرین نہ جانتے ہوں کہ علماء اہل سنت کا ایک بڑا ہی بہت ہی سنہرا کردار ہے. کچھ اس بارے میں اگر بلکہ میں چاہتا ہوں ایک مدنی گلدستہ موجود ہے 2 قومی نظریے کے حوالے سے جس میں علماء اہل سنت کا تذکرہ ہے. پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر کچھ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی سے اس بارے میں مدنی پھول لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم و ہنر کی قید، روزگار و کاروبار کی بندش، خواندگی کا فقدان، مذہبی اتوار و تہوار میں رکاوٹیں، احساس کمتری کا بڑھاؤ، یہ اور دیگر حقیقتیں جس کے سبب وقت کے مجدد امام الکلام حسان الہند امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے عطا فرمایا. بر صغیر کے مسلمانوں کو 2 قومی نظریہ جس پر ہر کوچہ، ہر گلی، ہر بستی، ہر شہر سے لبیک کی صدائیں بلند ہوئی اور پھر لالچ و طمع سے آری دلوں میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، غم خاری اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھنے والے سچے، کھرے، بوڑھے نوجوانوں کی ایک جماعت نے در اعلی حضرت سے ملنے والے اس 2 قومی نظریے پر تن من دھن کے ساتھ عمل شروع کیا. سامراجی و طاغوتی قوتوں نے ان بڑھتے ہوئے راست قدموں کو روکنے کے لیے اپنے تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا، مگر سایہ خدائے ذوالجلال میں جانب منزل بڑھتے اس کاروان نے 1933 سنہ عیسوی میں اپنے خواب کو ایک نام دے ڈالا. 1940 سنہ عیسوی میں مرکز الاولیاء لاہور میں مسلمانوں کا ایک کثیر اجتماع منعقد ہوا جس میں ایک بڑی قرارداد منظور کی گئی اور اس کا نام بھی 1933 سنہ عیسوی میں پیش کیے ہوئے نام سے منسوب کر دیا گیا. شب و روز کی یہ انتھک جد و جہد مزید 7 سال اور چلی. اس دوران انتہائی نازک مراحل اور کئی نشیب و فراز آئے، مگر ایک قوم کو ایک وطن دینے کے درینہ خواب نے میدان عمل میں موجود ان بلند نگاہ لوگوں کو ہر محاذ پر ڈٹے رہنے کا عجب حوصلہ اور جرت عطا کیا ہوا تھا. بالآخر نزول رحمت سے لبریز رمضان المبارک کی 27ویں شب 1366 سنہ ہجری مطابق 14 اگست 1947 سنہ عیسوی بفضل اللہ تعالی قلم و کلمات کی یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی اور دنیا کے نقشے پر علماء حق اور دیگر حق گو انسانوں کی جد و جہد کی بدولت ایک مسلم وطن ابھرا اور بر صغیر کا کونا کونا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ کے فلک شگاف ناروں سے گونج اٹھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ. پاکستان سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے. پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے. سبحان اللہ. علماء اہل سنت، جی حضور کچھ علماء اہل سنت کے بارے میں بتائیں. تحریک پاکستان کے حوالے سے. ویسے تو ایک بہت ہی طویل موضوع ہے لیکن مختصر عرض کروں گا، اور یہ یوں سمجھیے کہ علماء اہل سنت کا اگر تذکرہ نہ ہو تو شاید تذکرہ پاکستان ادھورا رہ جائے. جی ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو 2 قومی نظریہ جو پاکستان کے بننے کا ایک بنیادی سبب بنا، جی سیاسی طور پر اور اس لفظ کے ساتھ تو بعد میں آ کر یہ اجاگر ہوا، لیکن اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد قرآن و حدیث کی وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں سمجھایا گیا کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ ہم سے الگ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ گہرے تعلقات رکھیں، انہیں اپنا رازدار بنائیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں منع کی گئیں، اور یہی 2 قومی نظریہ تھا کہ یہاں پر رہنے والے جو خطے کے اندر لوگ ہیں ان میں 2 قومیں ہیں، ایک مسلمان ہیں اور ایک ادر دین مسلمز ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی نظریے کو جب آگے اجاگر کیا گیا، اس کے لیے کوشش کی گئی، تو اس کے نتیجے میں ہمیں ملک پاکستان عطا کیا جو اس کی اساس ہے. اب اس میں 2 طرح سے کوششیں ہوئیں. ایک تو سیاسی کوششیں تھیں، لیکن اس تمام جد و جہد کے اندر علماء اہل سنت کا، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی اور آپ کے خلفاء کا بڑا ہی کلیدی رول رہا. بلکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی،
हो सकता है बाद नाज़रीन के इल्म में हो, लेकिन एक बड़ी तादाद है जिनके लिए ये बात नहीं होगी कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान बनारस के अंदर एक सुन्नी उलमा कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनाकिद की गई थी, और उस ज़माने के अंदर तकरीबन सदी गुजरने को है, उस ज़माने के अंदर वहाँ पर तकरीबन 300 मशाइख और 2 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। यानी अभी पाकिस्तान नहीं बना था, उससे पहले मुसलमानों का इतना बड़ा इज्तिमा, और उसके अंदर बड़े बड़े उलमाए किराम, जिसके अंदर सदरुल फादिर मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस तरह के और भी दीगर जो मशाइख थे, उलमा थे, उन्होंने शिरकत की। और फिर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खुलाफा की जो सीरत हम पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान बनने से पहले 47 में बना, तो 45, 46 और इसके अतराफ़ के जो सिन हैं उनके अंदर उन्होंने अपनी दीगर मसरूफियात को बहुत ही कम करके तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। और याद रखिए कि इस ज़माने के अंदर तो ये तहरीकी कम्युनिकेशन का ये सिस्टम है, एक निज़ाम है, जमातें हैं, तहरीकें हैं। उस ज़माने में जो मुसलमान थे वो किन लोगों के गिर्द थे? वो उलमा और मशाइख के गिर्द थे। यार उस ज़माने के अंदर इस तरह की सियासी तहरीकें नहीं हुआ करती थी। मुस्लिम लीग बहुत बाद में आकर बनी, और फिर उसको जिन्ना साहब ने जो है वो लीड किया, और जो भी उसके बाद के खद्दो खाल थे, लेकिन इनके साथ जो लोग थे और जिनके साथ अवाम मुंसलिक थी, और ये 2 लाख का इज्तिमा उस ज़माने के अंदर ये ख़बर देता है कि उस वक्त जो एक जमइयत थी और एक असर था, रुजू था, वो उलमा की तरफ था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा फतावा उलमाए सुन्नत के मुस्लिम लीग की तायद में, 2 कौमी नज़रिए की तायद में ये लिखे गए। इसी तरह एक और बड़ा ताबनाक पहलू, उस ज़माने के अंदर कुछ इस तरह के लोग भी पैदा हो गए जिन्होंने कहा नहीं भाई, मुसलमान और जो गैर मुस्लिम है वो एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक खित्ते के लोग हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए। बल्कि मौज़ल्ला कई लोगों ने तो गैर मुस्लिमों को अपना बड़ा भी बनाने में जो वो पीछे ना रहे। उस ज़माने के अंदर उलमा अहले सुन्नत ही थे जिन्होंने 2 कौमी नज़रिए को उजागर किया कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, इस्लाम इस्लाम है और जो गैर मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम है। इसी तरह ज़ाहिर है कि उस वक्त जब इंतखाबात हुए और उन्होंने आम इंतखाबात करवाए, और वो एक ऐसा अहम मौका था कि अगर उस वक्त मुसलमान अपनी तादाद और पूरी कुव्वत के साथ सामने ना आते तो शायद पाकिस्तान ना बनता। तो उस ज़माने के अंदर जो भी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने दौरे किए, फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बारे में तो जिन्ना साहब के अपने अक़वाल मिलते हैं, और इस तरह के भी अक़वाल सुनने में आए कि अगर ये ना होते तो शायद मुझसे पाकिस्तान ना बनता। इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि मशाइख के साथ आज भी आप देखते हैं बड़ी तादाद में लोग मुंसलिक होते हैं। फिर जब मसाजिद से, मिंबरों से, फतावा से उलमा अहले सुन्नत ने जो है वो तायद की, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सैलाब जो है वो इसके साथ हुआ, मुस्लिम लीग के साथ हुआ, और फिर जाकर जो है वो पाकिस्तान मारिज़ वजूद के अंदर आया। इसी तरह और भी किताबों का तज़किरा भी किया जा सकता है। उलमा की एक बड़ी फहरिस्त है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर, अलीगढ़ के प्रोफेसर थे, खलीफा आला हज़रत थे सैयद सलमान अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका बड़ा कलीदी किरदार था। तो हर एतबार से इन्होंने 2 कौमी नज़रिए को उजागर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो पाकिस्तान इन उलमा की खिदमत के सदक़े ये जो इज्तिमा हुआ था, ये साल कौन सा था हुज़ूर? ये तकरीबन 1920-25 के आसपास, यानी 1946 से काफी अरसा हाँ, ये काफी अरसा पहले था, यानी बहुत पहले से काम शुरू हो चुका था। और लाहौर के अंदर भी उस जमाने के अंदर एक सुन्नी उलमा की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो बड़ी तारीख अपनी जो है वो तारीखी उसकी अहमियत उसकी बयान की जाती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा फितने भी किए जाते हैं। तहरीक तरके मवालात का सिलसिला था, तहरीक खिलाफत थी, और कई इस तरह की तहरीकें थी कि जिनके अंदर मुसलमान जो है वो गलत फहमियों का शिकार होने जा रहे थे। लेकिन ये उलमा थे अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने, आज मुफ्ती साहब भी दिन में थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात एक बयान की कि 1946 के अंदर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक था बरेली शरीफ के अंदर। उर्स मुबारक के अंदर उर्स की तकरीबात होती हैं, 2 दिन 3 दिन उलमा जमा होते हैं मुल्क भर से, और इमाम अहले सुन्नत का वैसे एक बड़ा नाम था। फिर आपके शहजादे खलीफा है मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप बहुत जो है वो सरगर्म थे इस मामले के अंदर। तो उर्स आला हज़रत के फ़ौरन बाद 20 उलमा अहले सुन्नत ने एक फतवा तहरीर किया, अपने उस पर सिग्नेचर्स किए, और उसमें बड़ी खुलम खुला और बड़ी वजाहत के साथ तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के बनने की तायद की गई। बल्कि मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात
इरशाद फरमाया भी पाकिस्तान बना नहीं है, 47 में पाकिस्तान बना, ये 45-46 की बात है। उर्स का मौका है जहाँ पर लोग अपने बुजुर्ग की अकीदत का इजहार करने के लिए हाजिर होते। लेकिन देखिए कि उलमा का सियासी किरदार कितना खूबसूरत था तहरीक पाकिस्तान के लिए, कि उस उर्स के जो स्टॉल लगे हुए थे, खाने के बस्ते हम अपनी इस्तिलाह में कहें, तो उसमें किसी का नाम था रज़विया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो किसी का कादरिया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। यानी इतना इन्वॉल्व थे हमारे जो अकाबिरीन थे और हमारे असलाफ थे कि उन्होंने आवाम को ये नाम और ये नारा जो है उनकी ज़ुबानों पर दे दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत हैं और बड़ा जज्बा था और बन के रहेगा पाकिस्तान नारे थे। और पाकिस्तान का मतलब क्या, अब यहाँ ये पता चल रहा है कि ये तो फैज़ान रज़ा भी है, फैज़ान बरेली भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब थे जिनको मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने सफ़ीर पाकिस्तान का लक़ब अता कर दिया। इसी तरीके से उलमा मशाइख पीर जमात अली शाह साहब का तज़किरा किया। इसी जब खैबर पख्तूनख्वा की बारी उस ज़माने में सूबे सरहद का मामला जो था, पीर ऑफ मानकी शरीफ यानी मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी पहले मशाइख के पास ही जाना पड़ता है क्योंकि वो गुरु उनको मिलते थे। और वही बात है कि चूंकि इसका मतलब एक और बात भी पता चल रही है कि पाकिस्तान बनने से पहले बल्कि सदियों से ये मामूल रहा है कि लोग उलमा के पीछे, पीराने उज़्ज़ाम के साथ और उनकी बात मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। हमने आखिर में इस सिलसिले इस टॉपिक को ज़रूर इसलिए शामिल किया कि ये भी एक मालूमात हमारे नाज़रीन को मिले कि ये फैज़ान जो है, ये अल्लाह की जो नेमत है, ये इतना खूबसूरत जो पाकिस्तान है, ये उलमाए अहले सुन्नत की बहुत सारी काविशों का नतीजा है, उनके सपोर्ट का नतीजा है। तो यकीनन हमने अब भी उलमाए अहले सुन्नत का दामन थामे रखना है और उनके इस पैगाम को आगे फैलाए चलना है। पाकिस्तान को नुकसान ना होने दीजिए। मैं दोबारा नीयत की तरफ आता हूँ, दोबारा अख्तिताम की तरफ आता हूँ कि आज मैं चाहता हूँ एक एक पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में मुझे सुन रहा है या बैरून मुल्क में सुन रहे हैं, देखें अल्लाह ने हमें आज़ाद वतन दिया, बहुत बड़ी नेमत दी। मैंने आज बहुत सारे इसको कहें कि जावियों से समझाने की कोशिश की हमने कि कितनी बड़ी ये रब की नेमत है। आज भी कोई पाकिस्तानी वतन से बाहर मरता है, मरने वाला होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे वतन की मिट्टी मिल जाए, मुझे कब्र मेरे वतन में मिल जाए, ज़हे नसीब जन्नतुल बकी मिल जाए तो क्या बात है। वरना उसके बाद पाकिस्तानी ज़रूर ये चाहता है कि मैं मरूँ भी तो यहीं मरूँ ताकि मेरे अपने कुछ कब्र पर आकर दुआ कर दें, फातिहा कर दें। इसी वतन में हम जीना चाहते हैं, इसी वतन में हम मरना चाहते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, खुदारा इसकी कदर कीजिए, अल्लाह की नाफरमानी ना कीजिए। आज तरह तरह की हम मुश्किलों में हैं, बड़ी तरफ से दुश्मनों ने मैली नज़र डाली हुई है। कहीं दहशतगर्दी का तूफ़ान है, कहीं बदअमनी है, कहीं चोरी है, कहीं डकैती है, कहीं जुल्म का बाजार गरम है। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। आइए आज यौम पाकिस्तान पर मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें, हम दिलो जान से अपने वतन से मोहब्बत करेंगे। पहले तो इसको अपना समझें, पहले तो इसको अपनाएं तो सही ना। हम अपने घर को जिस तरह साफ रखते हैं, हम घर के बाहर के हिस्से को क्यों अपना घर नहीं समझते? क्या ये मेरा वतन नहीं? जब अपने घर में मैं कोई गंदगी नहीं करता, मैं बाहर भी नहीं करूँगा। मैं जिस तरह अपने घर की हिफाजत की फ़िक्र करता हूँ, इस तरह मैं अपने वतन की हिफाजत की फ़िक्र करूँगा। जिस तरह मैं अपने बच्चों को तकलीफ़ ना हो इसका ख्याल रखता हूँ, मैं अपने हम वतनों को तकलीफ़ ना हो मैं इसका भी ख्याल रखूँगा। जिस तरह मैं अपने बच्चों की भूख पर, अपने घर वालों की भूख पर मैं तकलीफ़ में आ जाता हूँ, मैं अपने हम वतनों की तकलीफ़ पर भी इसी तरह आगे बढ़कर उनकी खिदमत करूँगा। फिर मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं करूँगा। नमाज़ें पढ़नी है, इबादत करनी है। आज एक एक पाकिस्तानी नियत करे कि मुझे भी नेक बनना है, अपने हर पाकिस्तानी को नेक बनाना है, हर पाकिस्तानी को नमाजी बनाना है, उसे गुनाहों से बचाना है। ये वतन अल्लाह के नाम पर बना है, हमें जन्नत में भी साथ जाना है। जी हाँ, अल्लाह ने जब दुनिया में ऐसा खूबसूरत वतन दिया है तो हमें आखिरत में भी तो जन्नत चाहिए। आओ मिलकर नियत करते हैं कि हम दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता होकर एक एक पाकिस्तानी को, चाहे वो यहाँ है या दुनिया में कहीं है, आका की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाएंगे, नमाजी बनाएंगे, खुद भी नेक बनेंगे, दूसरों को भी नेक बनाएंगे। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया में लोग अगर कारोबार करना चाहेंगे तो पाकिस्तानियों से करेंगे। अगर दुनिया में लोग किसी से कोई वादा करना चाहेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो पाकिस्तानियों से करेंगे। अगर दुनिया में लोग किसी वतन में आकर अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगे, अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे तो वो पाकिस्तान में लाएंगे। अगर कुछ लोग इल्म सीखना चाहेंगे, अमल करना सीखना चाहेंगे, वो पाकिस्तान वालों से रब्ता करेंगे। हम चाहें तो अपने वतन को इस बुलंदी तक ले जा सकते हैं। आज इस सिलसिले के बाद सोचिएगा ज़रूर, अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। आओ वतन से मोहब्बत के नारे तो बड़े लगाते हैं,
پریکٹیکل محبت کرنے کا آج سے آغاز کر دیجئے. اب تک جو گناہ ہوئے، جو رب کی نافرمانیاں ہوئیں، اس سے توبہ کریں. اور ہم نے اس رب کے اس احسان پر شکر ادا کرنا ہے. اور میں نے شروع میں بھی کہا تھا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ رب کو ناراض کر کے نہیں. دنیا میں کوئی تحفہ دے اسے ناراض نہیں کرتے. رب نے اتنا پیارا وطن دیا ہے، ہم اسے ناراض نہیں کریں گے. اب ہم اس وطن میں گناہ نہیں کریں گے. کیا اب بھی ہم پاکستان جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے شراب بیچیں گے؟ کیا اب بھی پاکستان جیسی نعمت ہوتے ہوئے ہم جوا کھیلیں گے یا جوا کھلوائیں گے؟ کیا اب بھی پاکستان جیسی عظیم نعمت ہمیں رب نے دی ہے اور اس کا شکرانہ نہیں کریں گے اور ہم جناب چوری ڈکیتی اور لوگوں پر ظلم کا بازار گرم کریں گے؟ نہیں میرے پیارے اسلام، تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کی رضا میں گزار لیجیے، اللہ کی فرما برداری میں گزار لیجیے. رب نے اتنا پیارا وطن دیا ہے، اچھی زندگی گزارو گے تو پیاری جنت بھی مل جانی ہے. امیر اہل سنت کا شعر بڑا پیارا ہے نا کہ رب نے وطن بھی دیا ہے، مولا جنت بھی تو عطا فرما. وہ شعر ذرا پڑھیے. لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھ جنت بھی عنایت فرما، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما. شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی. پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما. آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا. پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما، پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما. فضل کر اس پہ صدا، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. یا خدا سب کو عطا کی ہدایت فرما. ہائے بدمست ہوئے، ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن، ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن، ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن. یا خدا سب کو عطا کی ہدایت فرما، یا خدا سب کو عطا کی ہدایت فرما. چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک، چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک. ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرما، ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرما. واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ، واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ. دور غدار
سے تو دنیا کی محبت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ سدا، فضل کر اس پہ سدا، سایہ رحمت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، پیارا پاکستان میرا پاک وطن پاکستان۔ آج نیت کرنی ہے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ مل کر جہاں موجود ہے نعرہ لگائیے انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، سچے پاکستانی بن کر اپنے وطن سے سچا پیار کریں گے، اور انشاءاللہ جنت پر جانے والے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ دعوت اسلامی آپ کو ویلکم کرتی ہے، یہی تو دعوت اسلامی کا موٹیو ہے۔ دعوت اسلامی کا یوں سمجھ لیجئے کہ طریقہ کار ہے کہ آقا کے غلاموں کو جہنم کے راستے پر نہیں بلکہ ان کو وہاں سے اٹھا کر جنت کے راستے پر چلا دیا جائے، کیونکہ ہم آقا کے گدا ہیں، آقا کے غلام ہیں، اور جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہو جائیں۔ آخر میں عرض کروں گا کہ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیے، مل کر انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے سلسلے کا اختتام پاکستان کے قومی ترانے پر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پاکستان کا قومی ترانہ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ پاک سرزمین شادباد، کشور حسین شادباد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شادباد، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابن
منزل مراد پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدائے ذوالجلال یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.